So actually I'm using a new platform. टीचमेंट करके एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज कर रहे हैं. लेट्स सी, इसमें काफी फीचर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. अभी आप लोग सब एनरोल हो चुके हैं, सिर्फ 16 बच्चे एनरोल हुए हैं. एंड उन सब की ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी इसमें. इवन क्रोम में भी होता था, लेकिन क्रोम सॉरी गूगल मीट में भी वी कुड हैव द अटेंडेंस, बट it needs to be run on Chrome itself, Chrome only. If you change the browser, it doesn't take the attendance. Anyways, last time हम क्या बात कर रहे थे? Anybody? चेतना तो थी नहीं शायद लास्ट टाइम. अच्छा अच्छा. तो हम क्या बात कर रहे थे? What were we discussing? हम्म. So did you all get it? कुछ समझ में आ रहा था लास्ट टाइम जो बात कर रहे थे? I was talking about the research article and what are the journals and how the articles are published and what the proper credit should be given if at all you are uh, taking the data from somebody else's work, or you are taking some information from somebody else's publications. You need to give a proper uh, credit to that person. एंड वही एक है, जैसे कि आप देखते होंगे, यू मस्ट बी watching many of the health related or a COVID related informations, or what should be done, what should not be done. These type of videos are floated in WhatsApp, like it's enormously. And these the instructions or the advices, the suggestions the persons give in these videos are, they are of baseless. Maybe that particular suggestion is very true, but how do you say, how that person knows it's there? Because many of the cases, like abhi jo scenario hai, the infection has gone to its highest peak, and it's become very infectious. That COVID-19 has become very infectious as compared to the last strain which was there in last year. So ये जो high infections हो रहे हैं, people usually say, the मौसम is changing. मौसम बदल रहा है, इसलिए मुझे सर्दी खांसी और बुखार है. ये नॉर्मल सा वायरल इन्फेक्शन है, बोले वायरल फीवर है, बाकी ये कोविड नहीं. How does that person know it? This is what, this is what very much there in our blood. ये हमें बहुत है. हम किसी की बात को हमारा बना के बताते हैं. और कईयों की बात ऐसे होती है ना, कि जैसे कि अभी ये हम अपना खुद गेस कर लेते हैं, बिकॉज बोलते हैं कि हमें सब मालूम है. हाउ डू यू नो दैट वायरल इन्फेक्शन मुझे सिर्फ सर्दी खांसी हो रही है, सिर्फ इसके लिए? when it becomes now the cases, the death toll which is coming nowadays is just because of the mere negligence of the patients. They don't want to, like, and I tell you one thing, if at all, see, everybody's immunity is not same. Everybody has got his own or her own way of resisting the entry of virus, and that is different in every individual. And this difference is, the persons who are like the same death toll ki jo baat kar rahe hain, ki so many people are dying because of COVID. We exactly don't know how many of they are dying exactly, or the really with the COVID infection, or they are like dying with some other some other infection or some other reason, medical reason. So ये जो death toll है, the numbers related to the death because of COVID is misguided. And one more thing, people are saying like COVID तो हो गया, कोविड होने के बाद डेथ तो हो गई, लेकिन डेथ में ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि who or are which group of people or which group of individuals are falling prey for the death. ये मतलब कौन है जो मर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको जैसे बोलते हैं कोमॉर्बिड सिचुएशन, जैसे हम बोलते हैं कि डायबिटीज वाले हो गए, या फिर कहते हैं लाइक जिनको हाई बीपी है, या सम इंटरनल प्रॉब्लम्स आते हैं, मे बी रिलेटेड टू लिवर, मे बी रिलेटेड टू किडनी, मे बी रिलेटेड टू लंग्स लाइक अस्थमा एंड ऑल. तो ये जो चीजें हैं, आई विल टेल यू कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने जानना चाहिए. ये 1 साल हो चुका है, इवन आप लोग ने भी ये सब के बारे में जानकारियां पढ़नी चाहिए, जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज गेन करना चाहिए था आप लोग ने 1 साल भरे में, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट.
अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लाइक लाइक फोर्स्ड यू टू कंपेल यू टू, या फिर आपको परसुएड नहीं किया होता कि ये सब चीजें जानना जरूरी है आप साइंस स्टूडेंट्स के लिए। अब रही बात ये जो डेथ्स की जो हम बात कर रहे थे, वो उन लोगों में हो रही है दोज ओवर या फिर उन लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं जिनको ऑलरेडी दे वर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू सम एलिमेंट, यानी कि अभी वो कुछ ही एक आध 2 साल में वो किसी बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं, लाइक मे बी बीपी, मे बी शुगर, और मे बी सम किडनी प्रॉब्लम, मे बी सम लिवर प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स जस्ट अभी उनको स्टार्ट होने वाली थी, उस समय अभी कोविड का इन्फेक्शन जब हुआ, नाउ दे आर फेसिंग इट मोर seriously and more badly, and they needed hospitalization. Maybe this virus, this is a normal influenza virus, everybody says it. It goes, it replicates, and our body gets immune to it. It's natural. अभी तक हमें सर्दी खांसी होती थी, उसमें वही हुआ करता था। लोग बोल रहे थे कि एस्थमेटिक पीपल जो है वो जल्दी मर रहे हैं, बट टेल मी द रिकॉर्ड्स पे नहीं है। रिकॉर्ड्स पे यू वोंट फाइंड मोर एस्थमेटिक पीपल डाइंग ऑफ कोविड, ये नजर नहीं आएगा आपको, उनका नंबर लेस है। अब उसके पीछे का एक कुछ पब्लिकेशंस आई है, अभी देखो यही है, ये है पब्लिकेशंस। अब किसी ने कुछ रिसर्च किया है, कुछ डेटा को ऑब्जर्व किया है, एंड दे हैव कंक्लूडेड, बिकॉज जिनको एस्थमेटिक कंडीशंस हैं, दे आर यूजुअली ऑन सम ड्रग्स जो वैसोडाइलेशन वाली ड्रग्स हैं, यानी कि जो विंड पाइप है उसको डायलेट करती है सो दैट द सफिशिएंट एयर कैन गो इनसाइड, and usually these people have a cuff mucus, the thick mucus on lining, even in the lungs they have. So this is the virus needs a soft tissue to get inside. Unless and until it doesn't get inside, it cannot do anything. It's non-living, and we should not use the word dead virus. It's not dead virus. It's either defragmented virus or inactivated, या फिर जैसे कि हम एक वर्ड यूज करते हैं वैक्सीन में, attenuated. They have become functionless. They have been made defunct. Okay. Anyways, तो like ये अभी एक recently there is one publication, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत हल्ला किया कि एयरबॉर्न हो गया, by air it's transmitted. बट मैंने उसके बारे में ढूंढने की कोशिश की, आई कुड गेट अ पब्लिकेशन ऑफ लैंसेट एक जर्नल है, काफ़ी अच्छा जर्नल है, पुराना जर्नल है, और इसके डेटा को हम रिलाई कर सकते हैं, लाइक इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, बिकॉज इट्स बीन लाइक पीयर रिव्यूड, काफ़ी लोग इस पर रिव्यू करने के बाद ही वो पब्लिश होता है. There was a comment. It was not a publication exactly. It wasn't a research article. It wasn't a observation-based article. Of course, for article you need to have observation. It was a comment. A comment was telling that they could jot down 10 points by which they could see, they could feel, they could come to a possible conclusion which says, oh, this could be air spread, हवा से फैल रही है, लेकिन वो श्योर नहीं है, वो 50 to 59% के बीच में उनकी कंक्लूजन है, लाइक शायद 50% केसेस में उनको दिखते हैं, कुछ में नजर नहीं आते. This is because the virus has mutated. It has mutated into a better survivor. वो एक अच्छे सर्वाइवर जैसे थोड़ा सा म्यूटेट हो गया. That's why it's infecting fast. because उसे मालूम है कि इतने सारे ड्रग्स उसको दिए जा रहे हैं, वो मर रहा है, तो it's struggle for existence. वो उसका स्ट्रगल है एग्जिस्ट करने की, इसलिए वो फास्ट इन्फेक्ट कर रहा था कि बहुत से लोग मिले तो तुरंत रेप्लिकेट कर ले वो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ढेर सारे ड्रग्स का उसका असर हो रहा है, वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा. बिकॉज रेमडेसिविर हो गया या फिर फाविपिराविर हो गया, ये सब ड्रग्स जो है उसके रेप्लिकेशन में हिंडर करते हैं. दे डोंट अलाउ दीज वायरसेस टू रेप्लिकेट. इट्स नेचुरल विथ एवरी रेप्लिकेशन, एवरी वायरल रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं, खासकर इस कैटेगरी के. मर्स हो गया, सार्स हो गया, और दूसरे दूसरे कोविड के भी जो हम बात कर रहे हैं, इबोला के लिए भी है शायद ये सब ड्रग्स. तो ये यूजुअल वायरल इन रेप्लिकेशंस को एट सम स्टेज दे हिंडर, दे ऑब्स्ट्रक्ट. एनीवेज, तो ये जो या बोलिए. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में. अब इसमें से कुछ चीजें हैं, मैंने जैसे आपको बताया था
कि आर्टिकल्स किसी जर्नल में पब्लिश होते हैं, रिलेटेड जर्नल, यानी कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड कोई जर्नल होगा, कोई मैगजीन होगी, तो वो उनको पब्लिश करती है। अब वो पब्लिश करने के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, इनमें कुछ चीजें हैं जो मायने रखती हैं, क्या, हाउ ऑथेंटिक एंड हाउ इम्पोर्टेंट और हाउ सिग्निफिकेंट द वर्क ऑफ द पब्लिशर, या सॉरी नॉट द पब्लिशर, द ऑथर इज, जिसने भी उस चीज को पब्लिश किया है, उसके काम काम कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये दिखाता है कुछ इंडेक्सेस से, मतलब कुछ इंडाइसेस हैं जिसके थ्रू हम इनको डिटेक्ट करते हैं कि ये कितना अच्छा है। अब सपोज करिए कि मैंने जब कोई अपना आर्टिकल लिखा, तो मैंने किसी 4 लोगों के बारे में पढ़ा था, फिर उनके बातों को ही मैंने इंक्लूड किया अपने पेपर में, अपने आर्टिकल में, तो आई वुड यूज दोज 4 नेम्स इन माई बिब्लियोग्राफी, या फिर रेफरेंसेस, या फिर हम कहते हैं लिटरेचर साइटेड, यानी कि हम जो लिटरेचर पढ़ के हम इस बातों को कंक्लूड कर रहे हैं, उनके नाम मैं वहां मेंशन करूंगा। तो ये जो मेंशन करना जो होता है, इसको बोलते हैं साइटिंग। मैंने उन 4 लोगों के पेपर यहाँ पे साइट किए मेरे पेपर में। तो एक इंटरनेशनल यूनिट है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जो ये देखती रहती है कि कौन सा पेपर किसने, कब और कहाँ साइट किया है, ये मेंटेन करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंडेक्सेस मेंटेन करती है। तो वो हर एक पेपर का, हर एक साल का एक ब्यौरा बना के साल के एंड में वो एक जगह सबमिट कर देती है, और उसके बेसिस पे हमें साल के एंड में ये देखने को मिलता है कि मेरे आर्टिकल या फिर फला फला के आर्टिकल को कितने लोगों ने कितनी बार साइट किया, कहाँ कहाँ साइट किया वो भी दिखता है, और कितनी बार। सपोज करो वो 4 लोगों को मैंने अपने इसमें साइट किया, तो चारों को कैसे करेंगे, अब पता कैसे चलेगा साइट किया, तो दे यूज टू गिव 1 मार्क। जैसे कि मेरा एक पेपर साइट हुआ तो मुझे एक नंबर मिलेगा, मैंने उन 4 को साइट किया तो उन 4 को एक नंबर मिल चुका है। ऐसे मेरी जगह और भी 4 लोगों ने डिसाइड किया तो वो 4 को फिर से एक नंबर मिल जाएगा। लाइकवाइज आपके वन 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 स्कोर जो है मिलता जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव ए स्कोर कि आपके आर्टिकल को कितने लोगों ने रेफर किया है, सिर्फ पढ़ा नहीं, रेफर किया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, हमारा एक और पोर्टल है जिसको हम बोलते हैं गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर वही करती है, गूगल स्कॉलर एक डेटाबेस है जहाँ पे पूरे रिसर्च पेपर्स का डेटा मेंटेन किया जाता है। यदि फ्री अवेलेबल है तो फ्रीली उसके पास भी अवेलेबल रहेंगे, नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट दिखा देगा, इंफॉर्मेशन दिखा देगा, ऑब्जर्वेशन का कुछ पोर्शन दिखा देगा, और रेफरेंसेस दिखा देगा। अब ये क्या होता है, गूगल स्कॉलर जो है कुछ और चीजें भी मेंटेन करता है। वो ये कि एक रिसर्च गेट नाम का भी एक पोर्टल है, जहाँ से आप अपने अपने पेपर्स को, रिसर्च स्टूडेंट्स अपने आप को वहाँ रजिस्टर करते हैं, और उनको भी वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो आप किसी किसी का रिसर्च आर्टिकल आप रिफर करना चाह रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा, आई मीन फुल लेंथ पेपर, पूरा पेपर नहीं मिल रहा, छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिसर्च गेट में रिक्वेस्ट डालते हैं, तो हो सकता है कि उसी पेपर को पब्लिश करने वाले में से कोई उस रिसर्च गेट के एसोसिएशन या पोर्टल पे हो, तो वो वहां से हमें मदद कर सकता है। ही कैन शेयर हिज पीडीएफ फॉर्मेट, वो अपना फॉर्मेट शेयर कर सकता है। बट आजकल ऐसा है कि जब हम कोई आर्टिकल में, जैसे मैंने आर्टिकल पब्लिश किया, वो एल्साफायर के पब्लिकेशन में, मतलब एलसीवीआर बोलते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा, एल्साफायर उसका प्रोनाउंसिएशन है। जैसे आप लोग को मैंने शायद पूछा था, पता नहीं आपकी क्लास है कि पिछली क्लास थी, ये हमारे यहाँ एक कार कार कंपनी है जिसको जिसपे डब्ल्यू लिखा रहता है, कौन सी कंपनी है? हेलो? डब्ल्यू लिखा रहता है लोगो पे, लोगो में एक कार कंपनी है। किसी को आवाज नहीं जा रही मेरी? मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी कार कंपनी है जिसमें ऐसे डब्ल्यू लिखा रहता है लोगो पे? हाँ, उसको बोलते कैसे हैं? तुम्हारा फर्स्ट वर्ड सुनाई पड़ रहा, ऑन करो, 2 सेकंड रुको, फिर बोलो। फोक्स बोलते हैं, और लिखते कैसे स्पेलिंग? हाँ लेकिन, यस, तो वो जो वी एल के लिखते हैं, लेकिन वो वी जो है वो प्रोनाउंस होता है फ से।
इसलिए फॉक्स वैगन होता है। तो वैसे ही एल्सेवियर पब्लिकेशन, जो कि बहुत माना हुआ पब्लिशिंग हाउस है इंटरनेशनल, उसमें भी ELSEVIER, तो उसको बोलते हैं एल्सेफायर, लेकिन बहुत से लोग एल्सेवियर ही बोलते हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना, बट यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। ठीक है, तो वो एल्सेफायर, एल्सेवियर जो भी बोले, तो वो उसके जो पब्लिकेशन में जो बात कर रहा था, जब मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया तो उसने कंडीशन रखी कि क्या ये आर्टिकल आगे जाके आप खुद अपने ही पास राइट्स रखेंगे, यानी कि किसी ने पूछा तो आप उसको बेचेंगे नहीं बेचेंगे जो भी आपकी मर्जी रहेगी, या फिर आप राइट्स हमें दे देंगे जर्नल को। तो जर्नल को राइट्स देने से क्या होता है कि जर्नल कहती है जब आप राइट्स हमें दे देंगे तो हम आपको पैसों का चार्ज नहीं करेंगे प्रिंटिंग का। यदि आप राइट्स आपके पास रखेंगे तो आपको प्रिंटिंग का चार्ज देना होगा। तो प्रिंटिंग का चार्ज मतलब कि इतने बड़े जर्नल में कोई आर्टिकल में, जैसे आप 4 पेज का आपका आर्टिकल है तो 4 पेज का वो ऐसा नहीं बोलते कि एक पेज का इतने पैसे हो गए, वो वर्ड्स के ऊपर रहता है कि इतने वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे, इतने डॉलर्स लगाएंगे। और यदि पिक्चर है तो पिक्चर को वो अलग तरीके से प्रिंट करना होता है, तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं, 300 600 800 900 डॉलर पर प्लेट। प्लेट मतलब पूरे पिक्चर एक जगह भी लगा सकते हैं। तो ये है। तो मैंने जैसे क्या किया था, मैंने अपना कॉपीराइट छोड़ दिया था। तो कॉपीराइट छोड़ दिया तो क्या हुआ कि अब वो एल्सेफायर के उस जर्नल के पास मेरा कॉपीराइट है मेरे आर्टिकल का। एक नया वर्ड आया, कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब आपने कॉपी आपने लिखी है, आपका राइट है। वैसे कोई आर्टिकल आपने कहीं पब्लिश किया, आपने लिखा है, आपका राइट है वो, क्योंकि आपकी लिखित चीज। लेकिन आप उस आर्टिकल में, क्योंकि अभी साइंटिफिक आर्टिकल्स यूजुअली कैसे होते हैं, प्रॉपरली क्रेडिटेड रहते हैं। मैं किसी के काम को रिफर करूंगा तो मैं उनका नाम जरूर दूंगा, उनको प्रॉपर क्रेडिट दूंगा। तो इससे क्या होता है कि वी यूजुअली मेंटेन द डेकोरम, कि हम साइंटिफिक फील्ड में होते हैं, यहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ियां होती हैं, बट स्टिल वी मेंटेन लाइक एकेडमिक डेकोरम इन पब्लिशिंग द आर्टिकल्स इन साइंटिफिक जर्नल्स। तो उस प्रकार से देखा जाता है तो वो कॉपीराइट जो मतलब है, जिसने कॉपी लिखी है, जिसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, उसका वो राइट है कि वो उसका खुद का है। इफ somebody wants it तो he may sell it और he may give it like that। तो ये अलग ऑप्शन है। आप जैसे कि आपने मान लीजिए जर्नल को दे दिया, जैसे मैंने तो राइट्स जर्नल को दे दिया, व्हाई, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू पे फॉर द पब्लिकेशन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्री पब्लिकेशन पब्लिश कर देंगे, बट वी वुड बी द कॉपीराइट, यू हैव टू ट्रांसफर द कॉपीराइट टू अस। तो मैंने साइन करके दे दिया उनको कि यू कैन हैव द कॉपीराइट ऑफ माय मैन्युस्क्रिप्ट। सो आज जैसे किसी को उस आर्टिकल की जरूरत पड़ती है तो वो मान लीजिए वो जर्नल से मांगेगा, तो जर्नल उसको बेचती है। पता नहीं, जब नया नया आया था तो करीब करीब $39 में बेचती थी मेरे आर्टिकल को। अभी वो शायद 20 के नीचे आ गया, या फिर 20। जैसे समय बीतता रहता है और आपके काम का इम्पोर्टेंस यदि कम होता जाएगा तो आपके वो रेट्स भी, कॉपीराइट रेट जो बेचने का जो है वो भी प्रोपोर्शनल कम होता जाता है। ये एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आर्टिकल्स को कितना, कॉपीराइट वाली एक बात की मैंने, और दूसरा आपको मैंने बताया कि साइटेशन, यानी कि आपके काम को कितने लोग रेफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप क्या कर रहे हैं, आपको एक स्कोर दिया जा रहा है। तो ऐसा स्कोर जिसका जितना ज्यादा रहेगा तो समझ में आता है कि उसका काम उतना ज्यादा लोग पढ़ते हैं, लोग यूज करते हैं, यानी उतना पॉपुलर। जैसे अभी किसी ने कोविड का कोई काम पब्लिश किया आज की तारीख में, तो क्या होगा, वो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं उसको, सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने आर्टिकल्स में यूज कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा साइट होते हैं, साइट होना बोलते हैं उसको। और साइटेशन, ये जो साइट हो रहे हैं उनके नंबर्स मैंने बताया, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको टोटल एक मिलता है कि ये ऑथर का इतने साइटेशंस हो गए, उसको हम बोलते हैं साइटेशन इंडेक्स। लेकिन वो देखो अब यहाँ पे भी एक प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। साइट करना, CITE, साइट करना, और उसका जो इंडेक्स है, जो साइटेशन इंडेक्स अपने बोलेंगे CITATION, लेकिन उसको सिटेशन बोलते हैं, सिटेशन इंडेक्स। ऑफ कोर्स इट इज सेम स्पेलिंग, साइटेशन इंडेक्स, लेकिन उसको बोलते हैं सिटेशन इंडेक्स। तो सिटेशन इंडेक्स जो हर एक का रहता है, जैसे कि मेरा या कोई भी ऑथर जिसने पब्लिश किया है उसका एक सिटेशन इंडेक्स निकलता है। लेकिन मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर भी एक प्लेटफॉर्म है जो ये सब चीजें मेंटेन करता है, लेकिन वो एक चीज और देता है, वो ये, और जैसे रिसर्च गेट है,
वो एक चीज और देता है कि कितने लोगों ने व्यू किया। भले आपने आर्टिकल में यूज नहीं किया होगा, लेकिन कितने लोगों ने व्यू किया। जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं, लाइक करना, व्यू करना, फर्क है। यू ऑल नो इट, लाइक करना मतलब क्या है और व्यू करना मतलब क्या है। व्यू में भी उनका ऐसा रहता है, वो काउंटिंग ऐसी होती है, कम से कम 2/3 ऑफ वीडियो जिसने देखा है वही व्यू में जाता है, ऐसा कुछ है उसमें भी। मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं, जिन्होंने सिर्फ प्ले किया और सब उसे सरकार के एंड पे चले गए और देख के निकल गए, तो वो प्ले टाइम को भी काउंट करते हैं कि आपने एक वीडियो, 2 मिनट की वीडियो को आपने प्ले किया और आपने 30 सेकंड में एंड पे जाके लाइक मार दिया या फिर व्यू कर दिया, तो वो आपके दूसरे कैटेगरी में जाता है कि दैट पर्सन, द व्यूअर हैज नॉट व्यूड द होल वीडियो। तो वो अलग कैटेगरी में, वो अलग काउंटिंग में जाता है। लेकिन आपने 2 मिनट की वीडियो, आपको 2 मिनट तक आपका डिस्प्ले होता रहा था, एंड तक गया था, दैट विल बी काउंटेड एज ट्रू व्यूइंग। तो लाइकिंग अलग है, व्यूइंग अलग है, पार्शियल व्यूइंग अलग है, कंप्लीट वो प्ले टाइम को काउंट करते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया बनाते चले गए हैं जिसके थ्रू हम ये जानने लगे हैं। तो गूगल और गूगल स्कॉलर हो गया या फिर रिसर्च कीट हो गया, ये भी बताते हैं कि उस आर्टिकल को कितने लोगों ने देखा। आई मीन जैसे कि मैंने सर्च करते हुए मुझे आया, मैंने क्लिक किया, ओपन किया, देखा। वेदर हमने पूरा पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट मैंने देख लिया था, तो वो व्यूज में चला जाता है, कितने व्यूज मिले। फिर मान लीजिए मैंने उसको डाउनलोड किया, तो वो लिख के आ जाएगा इतने बार इसको डाउनलोड किया गया। अब वो कभी कभी काउंटिंग उसमें गड़बड़ होती है, मैं एक बार डाउनलोड किया, रुक गया, फिर से किया, तो दो बार काउंट चला जाता है। वो ऐसे डिस्क्रिपेंसीज तो हैं, बट स्टिल। तो ये डेटा को अलग अलग तरीके से देखने का तरीका, आई मीन द पर्सपेक्टिव, द नजरिया जो है बदलता चला गया। अब रही बात, मेरा काम जितने ज्यादा लोग देखेंगे या जितने ज्यादा लोग अपने कामों में रेफर करेंगे, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डेटा है। तो अब क्या करते हैं लोग, अब यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन आ गया है। वो ये करता है कि अच्छा, तो हम देखेंगे कि साल भरे में आपका हमारे यहाँ पेपर पब्लिश हुआ, तो हमारा जर्नल जो है को हम रैंक करना चाहेंगे कि हम 15 आर्टिकल छापते हैं महीने में, 15 के 15 आर्टिकल के साइटेशन इंडेक्स बहुत धुआंधार रहते हैं, यानी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यानी कि हमारा जर्नल बढ़िया है। तो अब ये जो है, अब ये इसको उन्होंने एक नया टर्म दिया, बोला इम्पैक्ट फैक्टर। यानी उस जर्नल का, उस मैगजीन का इम्पैक्ट कैसा है रीडर्स के बीच में, है ना। वो एक फैक्टर, उसको भी काउंट करते हैं। तो काउंट करना बड़ा सिंपल है, उसका काउंटिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कि वो ये देखते हैं कि उसमें जितने आर्टिकल सब पब्लिश हुए थे, उन सबको, जैसे कि इस साल में जितने भी ऑथर्स के पब्लिश हुए, उनको उनको क्या करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर कितने लोगों ने कहाँ कहाँ साइट किया, इस साल के जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, उनको कितने लोगों ने नेक्स्ट ईयर साइट किया अपने अपने काम में नेक्स्ट ईयर। तो 2 साल के बाद वो एक नंबर निकाल के लेके आते हैं, जो ये बताता है कि उनका जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस बार जितने लोगों के साइटेशन इंडेक्स सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। और जितने पब्लिकेशन हुए थे, मान लो साल, एक महीने में 15 पब्लिकेशन हो रही है, तो साल भर में कितना होगा, 10 पकड़ ही चले, 10 एक महीने में हो रही है, तो साल भर में 120 पब्लिकेशन होंगी, 120 आर्टिकल्स आएंगे हर महीने के हिसाब से। तो हर आर्टिकल को कितने लोगों ने नेक्स्ट ईयर साइट किया, उन सबका टोटल करेंगे और उसमें से 120 जो आर्टिकल्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे। तो हर एक आर्टिकल का एक एवरेज साइटेशन आ जाएगा, राइट। एक एवरेज साइटेशन आ जाएगा, तो वो कहलाता है इम्पैक्ट फैक्टर, है ना। कि आप कब जर्नल कितने अच्छे आर्टिकल्स छापता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, इम्पैक्ट फैक्टर वो वैल्यू है, वो रेशियो है, जो टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उन सबका टोटल नंबर ऑफ साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट ईयर। और ये साइटेशन जो नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, यूजुअली कभी तुरंत मिलता है, कभी कभी नेक्स्ट ईयर, तो 2 साल वेट करना होता है। तो यानी कि अभी 2021 का यदि मान लो आपको साइटेशन इंडेक्स देखना होगा, तो 22 के एंड में मिलेगा, ठीक है, 1 साल के बाद मिलता है, क्योंकि 1 साल तक साइटेशन होना भी तो चाहिए ना। अभी तो पब्लिश हो रहा है, नेक्स्ट ईयर साइटेशन मिलेंगे। तो ये एक इंडेक्स है जिससे वी गेट टू नो हाउ द इम्पोर्टेंट और हाउ जेन्युइन द जर्नल इज, द जर्नल विच इज पब्लिशिंग द आर्टिकल। तो वैसे ही कुछ जर्नल्स हैं
जो बहुत स्पेसिफिक, यूजुअली जर्नल स्पेसिफिक है, जैसे कि मैं एंजाइम्स लगा तो एंजाइम्स पे ही छापने वाली जर्नल्स होती है। और फिर एंजाइम्स में भी बोलेंगे कि मैं ऑक्सीडोरेक्टेजेस एंजाइम्स के बारे में ही लिखूंगा, तो ऑक्सीडोरेक्टेजेस के बारे में भी आपको एक जर्नल मिल जाएगा जो सिर्फ उसके बारे में ही लिखता हूँ, उसके आर्टिकल्स को ही पब्लिश करता हूँ, राइट। सो अब एक चीज एक और आ गई कि हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर वाली बात तो आ गई, वो कैलकुलेशन कर करते हैं, वो भी आपको बात समझ में आ गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इम्पैक्ट फैक्टर कितना तक जाता है? नो आइडिया। तो अभी जैसे कि हम बताएंगे, अभी जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैंने बताया जो ये शुरुआत किया, तो उसमें एक स्कोपस एक इंस्टीट्यूशन है, गूगल भी ये मेंटेन करता है, ऐसे बहुत सारे दूसरे क्रॉस रेफ मेंटेन करता है। तो ये ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ये यूजुअली ये इम्पैक्ट फैक्टर्स को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं, या फिर तो जर्नल को अपने आप को रजिस्टर करना होता है वहां पे कि इस जगह, तो वो जितना अच्छा जर्नल रहेगा वो अच्छी अच्छी जगहों पे रजिस्टर्ड रहेगा। तो इन सब जगह उनके रैंकिंग जाते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन अपने एक तरीके से उनको इवेलुएट करता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है नॉर्मल इवेल्युएशन है, जो थॉमसन ब्रूटन नाम का एक इंस्टीट्यूशन जो है करता था, अभी शायद नाम चेंज हो रहा है उनका, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। थॉमसन ब्रूटन का जो इम्पैक्ट फैक्टर जो था, वो हर साल के एंड में, जनवरी में, सॉरी दिसंबर में पब्लिश होता है कि इतने आर्टिकल्स इस, अपने अकेले का नहीं करता वो, अपने अकेले की जर्नल, हर एक जर्नल का, हर एक ऑथर का साइटेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बाद उसके फिर इम्पैक्ट फैक्टर्स कैलकुलेट करके पब्लिश करता है कि ये जर्नल का इतना है, ये जर्नल का इतना है। तो कहने का मतलब है साइटेशन इंडेक्स टेल्स अस कि आपके इंडिविजुअल आर्टिकल कितने लोगों ने साइट किया, मतलब आपके इंडिविजुअल आर्टिकल कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने लोगों ने वैल्यू दिया है। और इम्पैक्ट फैक्टर टेल्स अस अबाउट द जर्नल इन विच योर आर्टिकल इज बीन पब्लिश्ड, कि वो जर्नल कितना बड़ा है, वो जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जर्नल कितने अच्छे आर्टिकल्स छापता है। तो जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर रहेगा उतना अच्छा जर्नल है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा है कि ये मेरा जो पहला पब्लिकेशन आया था वो 2.5 या 2.63 ऐसा कुछ इम्पैक्ट फैक्टर था। यानी कि उस जर्नल में जो भी आर्टिकल छपता है वो 1000 लोगों में से 200 263 लोग पढ़ते ही हैं, है ना, या फिर 10 में से 2 से 3 लोग पढ़ते ही हैं। दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट फैक्टर टेल्स यू अबाउट। The value shows you those many people must have at least not only read, they have cited your work in their own work. अपने काम में उन्होंने आपके काम को साइट किया है, राइट। तो ये है इम्पैक्ट फैक्टर। एंड ये अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अब कोई जर्नल अच्छा है या नहीं है। यूजुअल देखा जाए तो हमारे इंडियन के बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो 1 के ऊपर भी नहीं जाते, इंडियन 1.0 उसके ऊपर नहीं जाते, बहुत गिने चुने हैं। एक हमारा करंट साइंस है जो 1 के ऊपर जाता है, तो वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है। और एक इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईजीएमआर है, वो करीब करीब 1.25 से लेकर 1.75 के बीच में वैरी करता रहता है। कभी कभी शायद 2 के ऊपर भी क्या हुआ, इट डिपेंड्स। कभी कभी किसी किसी साल क्या होता है कि बहुत अच्छा आर्टिकल सब जाते हैं, तो उनका साइटेशन इंडेक्स बढ़ जाता है, तो सो इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, मतलब तरीके हैं जिससे आप बता सकते हैं कि वो जर्नल अच्छा। अभी एक एसजेआर है, साइंस जर्नल रैंकिंग, तो रैंकिंग के भी एक आता है कि आपकी रैंक कितने में आती है, आपका जर्नल कितने रैंक पे आता है। सपोज करिए, इसका मतलब क्या है मालूम, देखिए एक आर्टिकल, एक जर्नल है जो एंजाइम्स के ऊपर छाप रहा था, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 आ गया सपोज करिए, यानी कि उसका हर आर्टिकल 10 लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आप बहुत खुश हो जाएंगे आप इस चीज जान के। लेकिन क्या होता है, आप सिर्फ एंजाइम से रिलेटेड ही आर्टिकल्स के बारे में पब्लिश करते हैं। तब ये साइंस जर्नल आर्टिकल क्या होता है कि साइंस जर्नल आर्टिकल्स में जितने साइंस से रिलेटेड जमा कर रहे हैं उन सब में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो एक अलग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द योर जर्नल्स के वैल्यू, जर्नल का सिग्निफिकेंस बताने के लिए। तो वैसे ही कुछ जर्नल्स हैं जो बहुत ही हाईली इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स हैं। जैसे आप सबको मालूम होना चाहिए, एक नेचर नाम का एक जर्नल है जिसको हम साइंस मैगजीन भी कहते हैं, क्योंकि नेचर एक ऐसा जर्नल है जिसमें सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री या बॉटनी नहीं, नेचर में हर एक साइंस से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आ सकता है। सो सीधी सी बात है, ज्यादा से आपका जो साइंस का मतलब जो स्कोप है पब्लिश करने का, वो ऑल साइंसेस है।
तो ऑल साइंसेस से आर्टिकल्स आएंगे। सीधी सी बात है कि आपका साइटेशन बढ़ता है, आपका इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है। बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक ऐसा जर्नल बनाना जिसमें हर साइंसेस के लोग पेपर पब्लिश कर सके, यानी कि आपको हर साइंसेस के एक्सपर्ट्स आपके बोर्ड में चाहिए। और ये सब क्या होता है, पीयर रिव्यूड रहता है। पीयर रिव्यूड मतलब एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू करते हैं कि हाँ, आपका आर्टिकल क्या सही में पब्लिश करने लायक है या नहीं है। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, टाइम हो रहा है। एक बार ऐसे ही हमने एक एक हमारे सीनियर थे और उनके साथ मिलके हमने ट्राई किया क्या ये नेचर जो है, अब इसका इम्पैक्ट फैक्टर मैं आपको बताऊं अराउंड शायद 30s में है, 35 36 पॉइंट समथिंग। यानी कि उसका हर आर्टिकल, हाँ यानी कि 1000 में से मतलब सपोज 10 में पकड़ते हैं तो 35.67 है मान लीजिए, तो 1000 करिए, तो हर 1000 में से वो कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको, 3000। मतलब जितने लोगों में पढ़े उससे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसको, यानी इतना ज्यादा पॉपुलर है। आपकी पॉपुलैरिटी बता रहा है, राइट। तो अभी कैसा है कि उसका हमने सोचा कि चलो इतने सारे पेपर आते होंगे और सभी साइंसेस से हैं, तो वी जस्ट ट्राइड कि एक पेपर वहां पब्लिश करके देखते हैं। तो हमारे वो सर ने बोला कि चलो प्रोसेस रहता है ऑनलाइन सबमिशन का, ऑनलाइन सबमिशन में हमने डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए, जस्ट लाइक दैट, जस्ट टू चेक वेदर कितना समय लगता है, ये बड़े जर्नल है तो इनमें इवैल्यूएशन प्रोसेस कितना समय लगता है। सबमिट करने के बाद हम चले गए, हम चाय पीने को गए एंड वी कुड रिटर्न आफ्टर 1.5 आवर्स, एक एक 1.5 घंटे बाद वापस आए। वी डिड नॉट इवन चेक ऑल्सो कि मतलब क्या अभी तो नेचर में डाला है तो इतने सारे आते हैं वहां पे तो इतना समय लगेगा। यूजुअल में बाकी जगह पे जर्नल्स को ऑनलाइन करने में 1 महीना 1.5 महीना लगता है, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने को। तो ये हमने छोड़ दिया था। फिर देन अगेन जैसे हम जा रहे थे तो 1.5 घंटा हो चुका था, तो हमने उसको मेल वो चेक कर रहे थे, अपना मेल चेक किया तो उन्होंने उसमें एक मेल दिखा, नेचर से मेल आया होगा, तो मैं खोल के देखा, शायद उनको लगा शायद रिसीव वी हैव रिसीव्ड योर मेल, उसका मेल होगा। बट वो तो आ चुका था। उसके बाद दूसरा मेल था कि आवर प्री रिव्यू टीम, मतलब रिव्यू करने वाली टीम अलग है, उसके पहले ही एक प्री रिव्यू टीम है जिसने आपके पेपर को इट वाज फाउंड दैट इट इज नॉट एलिजिबल टू बी पब्लिश्ड इन आवर जर्नल। सो स्कोप नहीं, स्कोप नहीं नहीं बोला कि वो अच्छे लैंग्वेज में लिखते हैं, गंदे तरीके से नहीं लिखते कि हम अनेबल हैं टू पब्लिश द आर्टिकल इन आवर जर्नल, ऐसा बोल के उन्होंने थैंक यू बोल दिया। मैंने सोची कि 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने उनकी टीम ने रिव्यू कर दिया और समझ भी लिया कि ये काम की है या नहीं है। यानी कि उसकी प्री रिव्यू टीम में भी लोग ऐसे बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो कुछ जज कि हाँ भाई ये काम का नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करता। और आपको मालूम होगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो 2000 कब खत्म हुआ था, 2003 में उसका एक डेडलाइन रखी गई थी, उसके पहले बिफोर टाइम हमने उसको फिनिश किया था। मतलब हमने मतलब अर्थ एज अ प्लैनेट, तो जब हमने उसको कंप्लीट किया तो उसका जो पूरा सीक्वेंस मतलब जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स थे सब नेचर के पास कॉपीराइट था। कॉपीराइट था मतलब उसने ले रखा था, और उसने उसके ऊपर से बहुत सारी चीजें की, पोस्टर्स निकाले थे उसके ऊपर सीक्वेंसेस का अलग से वो एक रेफरेंस निकाला था। तो ये ऐसे बड़े जर्नल्स हैं तो लोग पढ़ते हैं इन जर्नल्स को। वैसे एक है, अब नेचर जो है यूके यूरोप से आता है, तो यूएस वालों की तो हमेशा आदत है कि हम क्यों पीछे, हमारा भी कुछ होना चाहिए अलग से। तो दे हैव स्टार्टेड साइंस, साइंस नाम का एक जर्नल, उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ऊपर जाता है बिकॉज एवरी अमेरिकन पब्लिशर्स देयर ओनली। आपको इंडियन अमेरिका पढ़ने जा रहा है तो वो भी उसी में पढ़ने। तो एक ड्रीम होता है एक रिसर्चर का कि भाई नेचर में मेरा पब्लिकेशन हो या फिर साइंस में मेरा पब्लिकेशन हो, होता नहीं है यूजुअली। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ द फैक्ट इज दैट कि हम उस क्वालिटी का रिसर्च ही नहीं करते। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अपने ये देखेंगे, एक कुछ है नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि वो क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमारे काम को इम्पोर्टेंस मिलती है ना, वो क्या पैरामीटर्स है कि जिससे हमारे काम को वैल्यू बढ़ता है, जिसके हमारे काम को साइटेशंस मिलते हैं, जिससे हमारे काम को एक अच्छी जर्नल एक्सेप्ट करती है, जिससे हमारे को एक अच्छा रेपुटेशन या फिर ये बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद में कुछ और इंडेक्सेस हैं, एच इंडेक्स है, आईटेन इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अब क्या नए नए लोग आते हैं, नई नई चीजें इवैल्यूएशन के मेथड्स डेवलप करते रहते हैं। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपन मंडे को, ठीक है। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज वर्किंग ओके, लोगों को हम ऐड कर लेंगे सभी लाइन से। कोई बात ही नहीं करता,
या तो सब सो जाते हैं। हम्म, बोलो ऑन तो क्या बोल ही नहीं रहे हो। शैल वी स्टॉप इट नाउ? ओके, चलिए, बाय, सी यू ऑन मंडे।